Hello, good morning. Hello, good morning, everyone. सुनाई पड़ रहा तुम लोग को? So today we'll start Fourier transformations two. Here we previous class already discussed the Fourier transformation, Fourier sine transform, cosine transform, and also here we discuss some problem about the Fourier transformation. First problem will start. Find the sine transformations of exponential minus x by x. Okay. So Fourier transformations we have clear according to formula. Anyone student clear or not? So Fourier transformation according to by formula, so we can write here I say. So then I equal to 0 to infinite exponential minus ax by x sine ss dx. Here we apply the differentiation under the integration. Okay. So di by ds we have so 0 to infinite minus exponential of ax by x cos of sx dx. Differentiate with respect to s. Okay. So according to next step, we have 0 to infinite exponential of minus ax cos of sx dx. So this integrand will have a by a square plus s square. So that value, this integrand we have a by a plus s square. So integrand I equal to tan inverse s by a plus c. S by a plus c. Okay. For s equal to 0, which gives I equal to c, but I equal to 0 and s equal to 0 will get c equal to 0. That's why I equal to tan inverse s by a. Clear or not? Anyone student? Tell me. क्लियर है? बोलो मनीष कुमार, खुशबू कुमारी, क्लियर है?
मोहम्मद सादिक अख्तर, आयुष कुमार, क्लियर है बोलो। अभिषेक सुमन, क्लियर है बोलो। So next problem we discuss, find the sign transformations of x by 1 plus x square and find cosine transformations of 1 by x 1 plus x square. Here two types of problem. So basically we'll start the Fourier cosine transformation. This problem. First problem we'll solve the cosine transformation. After that we solve the sine transformation. The basically cosine transformation. A sine transformations will depend on cosine transformation. So for a cosine transformations we have 0 to infinite 1 plus x square cos of sx dx equal to I. First problem. Our integrand we say, so I equal to 0 to infinite cos of sx dx by 1 plus x square. Differentiate with respect to s. Okay, so di by ds equal to, देखो differentiation under the integrations we have, clear है कि नहीं बोलो? Anyone student? Rakhar Gupta, Manish Kumar, Ashok Kumare, Ritik Anand Singh. Anyone student? Yes, sir. बोलो क्लियर है खुशबू कुमारी? Yes, sir. Clear. अभिषेक शुभम, so di by ds clear step. So next step will have, देखो इसको क्लियर है,
लिख सकते हैं ना? एनीवन स्टूडेंट बोलो। हरीश कुमार। सो नेक्स्ट स्टेप टेल मी। देखो स्टेप क्लियर है कि नहीं बोलो खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप देखो, ये क्लियर है? मनीष कुमार। सर ये स्टेप कैसे ब्रेक किए ये नहीं समझ में आ रहा। बोला बोला। ये जो स्टेप किए हैं sin x बाई एक्स डी एक्स प्लस ये कैसे ब्रेक हुआ ऊपर से। ये इसको बोलो तो। ये सर वो ऊपर ऊपर तक समझ में आ गया, ये कैसे ब्रेक हुए ही नहीं। इसी को बोल रहे हो, जो हाईलाइट किया इसी को बोल रहा हो ना? हाँ यस सर वही। ओके देखो, इस एक्स स्क्वायर को वी कैन राइट लिख सकते हैं। देखो हाँ यस सर ये लिख सकते हैं। ओके देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1, दो अलग अलग पार्ट ओ में। यस सर अब समझ में आ गया सर। ओके ये मिल जाएगा तुमको। अब समझ हाँ सर अब मिल। आफ्टर दैट दिस इंटीग्रैंड विल हैव माइनस पाई बाय 2। ठीक है, यस सर इंटीग्रैंड ऑलरेडी हैव। ठीक है ऋतिक कुमार। हाँ सर यहाँ तक ठीक है। Okay. Equation 3 will have. So again differentiate with respect to s. So d square I by d square equal to, step clear है? डिफरेंशिएशन सर डबल डिफरेंशिएशन किए नहीं इसके बाद सर। हाँ बिल्कुल, di ds already have. So double differentiation already fine. ओ हाँ वो तो जीरो हो गया। यस सर ये ठीक है। Okay. So next step clear है? ये क्लियर है। Clear है ना? हाँ सर ये क्लियर है। That is equal to I. देखो I हाँ फर्स्ट वाला ही हो गया। I already have equation 1. देखो यस सर स्टार्टिंग इक्वेशन बन गया ये। so this one clear not? d2i by ds square minus I equal to 0. यस सर ये क्लियर है। Second order linear differential equation. हाँ सर I is equal to a Solutions of I we have. plus Solutions of I we have. इधर नहीं, solutions of I already have ना? Second order linear differential equation.
solutions? Clear or not? ऋतिक कुमार नहीं ये क्लियर नहीं है सर। क्लियर है? नहीं ये नहीं समझ में आ रहा। ये क्वेश्चन से आया है। नहीं क्वेश्चन से नहीं आया, ये तो इसका सॉल्यूशन जो निकालोगे ये नहीं निकलेगा। हाँ ये तो है। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए थे तुम लोग को। हाँ सर। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, बात है। यस सर। कोई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को ही यह सॉल्यूशन लिया गया है, i इक्वल टू दिस डिफरेंशियल में। So equation 4 we have, ठीक है? So we have put x equal to 0 in 1, तो equation 1 में आओ, equation 1 में आओ, ठीक है? equation 1 में आओ, ठीक है? तो equation 1 में जब आएंगे हम लोग तब i इक्वल टू ये, ठीक है? s इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऋतिक आनंद क्लियर है कि नहीं बोलो? यस सर क्लियर है। Okay. So that integrants we have tan inverse x. So pi by 2 will have हाँ यस सर ये क्लियर है। from equation 4 में आओ, from equation 4 में आओ, equation 4 में for s equal to 0. So I तो निकल गया, pi by 2 निकल चुका है, तो या इस that's value equation 4 में क्या मिलेगा? ये किधर है? हाँ सर मिल गया इसे ये। Okay. अभिषेक शुभम क्लियर है? आयुष कुमार, अशोक कुमार So next step, put s equal to 0 in equation 3. देखो, put s equal to 0 in equation 3. तो equation 3 we have, देखो, equation 3 we have, ठीक है? s equal to 0. So di by ds equal to क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय 2 इंटीग्रल तो यस सर। s equal to 0 equation 3 में s equal to हाँ सर ये तो क्लियर है। sin 0 हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, तो हाँ s equal to माइनस पाई बाय 2। सिमिलर है यस सर ये और इक्वेशन में आ जाओ, फ्रॉम फ्रॉम 4 में आओ, फ्रॉम इक्वेशन 4, हाँ दैट्स इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4। तो क्या होगा? डी बाय डी एस इक्वल टू ये मिलेगा तुमको एस हाँ तो क्या मिलेगा? माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। तो हाँ। फिफ्थ और सिक्स्थ को मिला के ए बी फाइंड आउट कर दो, वैल्यू ए बी वैल्यू निकाल दो। फिफ्थ में क्या नहीं है? फिफ्थ में तो क्या है? देखो फिफ्थ में क्या है? ए प्लस बी को पाई बाय 2 और सिक्स्थ में क्या है? ये दोनों को मिला के सॉल्यूशन कर दो, ए बी फाइंड आउट करो। यस सर आ जाएगा ये। इंटीग्रेंड आई इक्वल टू क्या मिलेगा? पाई बाय 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस e⁻⁻⁵। ठीक है? ये इंटीग्रेंड तो क्या है? फॉर ए कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन से इंटीग्रेंड आई क्या है? फॉर ए कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 by 1 plus x square और पाई बाय 2 into एक्सपोनेंशियल माइनस एस ऑलरेडी है। तो तुम्हारा फॉर ए कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू तुम्हारा निकल गया, सेकंड क्वेश्चन निकल गया, ठीक है? ठीक है ऋतिक? यस सर। So next step, di by ds equal to minus pi by 2 into exponential minus s. तो di by ds कहाँ है? Exponential pi minus pi by 2 into exponential minus s. अगर b इक्वल टू 0 हो जाएगा या b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो di by ds इक्वल टू ये पार्ट तो मिलेगा ना?
दिया यस सर, ये क्लियर है। क्या? डी आई बाई डी एक्स। minus pi by 2 in the exponential minus s. यस। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो दिया हुआ है उसको यूज करेंगे हम लोग। तो दैट्स वैल्यू वी हैव डी बाय डी एक्स। क्या है डी बाय डी एक्स को तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू तुम्हारा निकल गया। तो बेसिकली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बेस क्या है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो फंक्शन का निकलेगा वैल्यू निकलेगा, आफ्टर दैट साइन का निकलेगा। देखो पहले क्या निकला फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू निकलेगा, आफ्टर दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा। ठीक है। यस सर। खुशबू कुमारी क्लियर है? Find the Fourier cosine transformations of exponential minus x square। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। तो Fourier cosine transformations we have is equal to I से किधर की नहीं बोलो। ठीक है, ऋतिक कुमार, ऋतिक आनंद, ऋतिक आनंद। So next problem di by ds देखो will have किधर है ऋतिक आनंद? खुशबू कुमारी, रोहित कुमार, सरोज कुमार। Yes, sir. Yes, sir. योर नेम? रोहित कुमार Yes, sir. किधर है? हाँ सर। अब स्टेप देखो, ये स्टेप किधर है बोलो। 1/2 एक्सपोनेंशियल 0 to infinite माइनस 2x। बोलो किधर है कि नहीं बोलो। हाँ सर, क्लियर है। अब ठीक है देखो, इसको इस तरह से ले सकते हैं। इसको इंटीग्रेंड को डेफिनेट इंटीग्रल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। आप देखो हम लोग बाय पार्ट्स करेंगे, तो बाय पार्ट्स करके ये मिलेगा। देखो तो चेक कर दो, इक्वेशन विल हैव बाय पार्ट्स।
बाय पार्ट्स किधर है? एनीवन स्टूडेंट? किधर है बोलो? एनीवन स्टूडेंट? अनंत का प्रधान किधर है? प्रॉब्लम उसको कुमार ऋतिकानंद मोहम्मद सादिक तो dy by ds will have देखो dy by ds will have minus s by 2 into integrand of 0 to infinite exponential minus x square cos of sx dx will have. After that the dy by ds will have minus s by 2 into I. ठीक है, ये मिलेगा तुमको. तो अब इंटीग्रेंट कर देंगे तो log of I मिलेगा ये इक्वेशन 2 will have I equal to c into exponential minus s square 4. किधर है? आयुष कुमार, मुस्कान दुबे, Yes, sir. किधर है?
Yes, sir. So equation 2 will have, ठीक है ना. Next step, when s equal to 0, then I equal to I integrand will have देखो I integrand will have देखो root pi by 2. After that equation 2 will have for s equal to 0, I equal to देखो मिलेगा root pi by 2 exponential minus s square 4. किधर है कि नहीं बोलो. खुशबू कुमारी प्रॉब्लम किधर है कि नहीं बोलो. Next step, next problem we have देखो find the inverse Fourier transformation of exponential minus AP by P. The Fourier sine inverse formula will have 2 by pi 0 to infinite Fourier sine transformation sine of sx dx. देखो तो fx क्या बनेगा, Fourier sine transformation में ये मिलेगा fx, ठीक है. df by dx मिलेगा तुमको, ये मिलेगा. After that integrand will have 2 by a by x over a square, ये मिलेगा. So f इंटीग्रेंड कर देंगे तो अब क्या मिलेगा 2 by tan inverse x by a plus c. और initial condition x equal to 0, f equal to 0, then a equal to 0. So we will have f equal to 2 by pi tan inverse x by a. इधर है ये स्टेप किधर है. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो Fourier sine inverse formula, find the Fourier inverse formula and f bar p exponential minus mod of p y. Mod of p will have देखो minus p by p where p less than equal to 0, p greater than equal to 0. ठीक है. तो Fourier inverse formula लिख दिए हैं. f bar p का वैल्यू क्या होगा, दो वैल्यू लिख दिए. माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0 में क्या है माइनस इनफाइनाइट टू p
और 0 to infinite. After that mod of p का वैल्यू क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू 0 में mod of p का वैल्यू क्या है? माइनस p है, तो माइनस p यहाँ पुट कर देंगे तो प्लस p हो जाएगा. तो p will have y plus ix will be considered. ठीक है. सिमिलर वे 0 to infinite में mod p का वैल्यू क्या है? प्लस p. तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस तो ऑलरेडी है, p इक्वल टू y माइनस ix एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर में. ठीक है. इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके पर निकाल दिए. देखो वैल्यू निकाल दिए हैं. इधर है, बोलो एनीवन स्टूडेंट. Yes, sir. इधर है. Yes, sir. Yes, sir. इसको भेज दिए तो ब्लॉक हुआ, देख लोगे इस पर. ठीक है, समझे? Yes, sir. और किसी को पूछना है इसमें? स्टेप क्लियर नॉट? एनीवन स्टूडेंट?